So, in previous lecture, we have discussed about Shakespeare's quotes and his plays originality, okay, and his plays originality and his fame and quoted by very famous writer like Dryden, Ben Jonson, and talk about his characters, okay, and the characters belongs to a commingled the vice and virtue, okay, and other characters who belongs to lovebirds like Desdemona, Othello, and further we discussed about mockery of love and character, okay, in which we talk about the most famous character Benedict and Beatrice, which is already asked in 2020 exams PGT, okay, and the play's name is Much Ado About Nothing, and further we discuss about some most important quotes which renders the human heart and moves to pity with us, okay, in which we talk about the Richard II and King Lear, okay, and discuss quotes about life. So in this video we are going to discuss about Shakespearean tragedy, okay, we are going to Shakespearean tragedy, and this is our lecture 5, okay. As we know that tragedy, first of all we have to discuss what is tragedy. Tragedy is a tale of, it's a tale of death or suffering, but the Shakespearean tragedy is also a powerful tales of death and suffering, okay. And Dowden Dowden says that for Shakespeare, डाउडन का ऐसा मानना था कि अगर शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर के लिए जो ट्रेजिडी थी, दैट इज़ द रूइन ऑफ द सोल एंड ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, ओके। कहने का मतलब जो जो शेक्सपियर के लिए ट्रेजिडी थी वो जो मनुष्य के जीवन की आत्मा को जो बर्बाद कर देने वाला वो था, वो ट्रेजिडी था। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी का सब्जेक्ट था वो अच्छाई और बुराई के बीच एक ट्रबल था, संघर्ष था ना, गुड एंड एविल के बीच क्या था, स्ट्रगल था। और हम ये भी जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो है बहुत सारे ट्रेजिडी लिखी हैं, ठीक। इसमें से हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है हेमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट ना, and Roman tragedies, Coriolanus, Antonian Cleopatra, and Timon of Athens. Okay, so in this video we have to focus on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, okay, and some another reference of Romeo and Juliet. So we move on further our lecture, and let's talk about Shakespearean tragedy and the nature of the Shakespearean tragedy, okay. So जो पहली चीज़ है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी की कि ये कभी भी जो है, इसकी जो सारी ट्रेजिडी आप पढ़ेंगे तो वो कभी भी कॉमन मैन को टारगेट नहीं करती, कभी भी कॉमन मैन को टारगेट नहीं करती। इसकी जो ट्रेजिडी होती है वो हमेशा हाई स्टेट लेवल की ना, हाई स्टेट की हाई डिग्री पे बात करें, जैसे किंग होंगे, प्रिंसेस होंगे ना, ये इस पर जो है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी की बात करती थी, ओके। सो जैसे एग्जांपल में देख लो, ब्रूटस हो गया, एंटोनियो हो गया, लियर हो गया ना, किंग लियर हो गए, हैमलेट हो गए, ये सभी मतलब आइडल थे और किंग थे, प्रिंसेस थे ना। लेकिन मॉडर्न ड्रामा में क्या होता था, मॉडर्न ड्रामा भी आप मॉडर्न ड्रामा को उठाइए तो उसमें आपको ट्रेजिडी उनकी होती थी वो एक ऐसी स्टोरी होती थी जो जिसमें जो एक मिडिल मैन, एक कॉमन मैन
के द्वारा जो है जो बॉर्न की गई कॉमन मैन के द्वारा कॉमन मैन पे बेस्ड उसकी सफरिंग सिखानी होती थी, ठीक है। अच्छा, ट्रेजेडी आप वो चार्ल्स डिकेंस के कुछ नॉवेल वगैरह या ट्रेजेडी कुछ ले लीजिए, कुछ भी ना, तो उसमें आप देखेंगे जो है जो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटैगनिस्ट ना, तो उसकी सफरिंग्स के बारे में एज अ कॉमन मैन ही बिकम अ हायर मैन। बट हियर मतलब इन द सेंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वहाँ पाएंगे कि जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ऑलवेज टॉक अबाउट द हाई डिग्री, ओके, हाई डिग्री ऑफ मीन्स किंग्स एंड प्रिंसेस। द another feature of Shakespearean tragedy was he always introduces the number of persons in his tragedy, but the story revolves around only two, hero and heroine, and the story leads up to the tragic end of the hero and heroine. The third one is the main important tragic flaw or fatal flaw, or sometimes it's called hamartia, okay, hamartia. No, so we can say that the fatal flaw or tragic flaw is the another factor of Shakespearean tragedy, no, which is the fall of the hero and not the ordinary type. अब आप किसी भी प्लेस को उठाइए, जो हीरो का जो एंड होता था, दैट्स नॉट अ ऑर्डिनरी टाइप, okay. Suppose that for example here I have mentioned some examples regarding suppose that we have a Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, okay. If we talk about Hamlet, so what was his tragic flaw? He has a state of his vacillation. Vacillation means hesitance. He has a only मतलब कुछ मतलब कि हमेशा कुछ भी करने में पहले हेजिटेट फील करता था। तो एक फेमस कोट भी है उसी इसी वैक्सीलेशन से रिगार्डिंग, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। मीन्स वो बड़े कन्फ्यूजिबल सिचुएशन में रहता है, एंड दैट वैक्सीलेशन इज लिटरली ऑन द रैक, मीन्स अंडर प्रेशर, always he come under pressure of the vacillation, always stop him to do some action ना, कुछ एक्शन करने के लिए हमेशा उसे वैक्सीलेशन उसके आड़े आ जाती थी ना। इसीलिए जब वो आपने देखा होगा जब वो क्लॉडियस जब प्रे करता है और ये हेमलेट मारने जाता है, तो वो वैक्सीलेशन ही उसको रोक देता है, उसे उसकी हेजिटेशन उसे रोक देता है, एंड दैट टाइम ही सेज दैट टू बी और नॉट टू बी ना, मतलब एक्शन नहीं करता वो, लिटरली ऑन द रैक। एंड अगर मैं अथेलो की बात करूँ तो अथेलो डिस्टर्ब स्टेट ऑफ जेलसी एंड गलिबिलिटी, उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? ट्रेजिक फ्लॉ था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जेलसी हो गया भाई, यागो ने उसे जो है सीड्यूस कर दिया, और सीधा था तभी ना उसको यागो सीड्यूस कर पाया, उसको जानता था इस अमूर। सो अपनी इस स्टेट से उसने क्या किया, अपने घर को बर्बाद कर लिया, ओके। एंड किंग लियर ही हैज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड and behave rashly and irresponsibly in the start of. And another is Macbeth, okay. Macbeth, his tragic flaw was most ambitious, and his ambitious nature meets his tragic end, and his flaw was he thinks after King Duncan he will be king of, no? So later he realizes that the still life is meaningless and for him, and it is all he says that a tale of told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, okay. The another factor is suffering and calamity, okay. The other factor is suffering and calamity. The means if we talk about suffering and calamity, so in Hamlet you find up state of his vacillation. पहले बताया अथेलो in the disturbed state of mind find the house divided within himself, and King Lear his insanity raps. ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार ना एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि किंग लेयर का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था या उसकी सफरिंग क्या थी, तो या पे इंसैनिटी हो गया ना। मैकबेथ का क्या था, तो फील द पैंज ऑफ मर्डरिंग किंग डंकन, वो सब आपको याद रखना है।
Okay, these all are okay, these 4 points: suffering and calamity, fatal flaw, tragic flaw. Okay, and these are the voluntary ना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या था, ये वॉलेंट्री एक्शन था। मतलब ये जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो जानबूझकर, मतलब ये अपनी मर्जी से ही एक्शन ले लेता था ना। उसका एम्बिशियस होना, और उसका एम्बिशियस होना, उसका वैसिलेशन, उसकी वीकनेस होना, या एरोगेंस और प्राइड होना, जेलस होना, गिलिबिलिटी होना, ये उसकी इच्छा से वो तो अपनी मर्जी से ही करता था, मतलब ना। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते थे जो नॉन वॉलेंट्री एक्शंस होते थे, उन्हें हम नॉन वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। नॉन वॉलेंट्री एक्शन मतलब कि जिसे वो चाह कर भी ना करना चाहें, लेकिन उनके सामने ऐसा हो जाता था। जैसे अगर मैं बात करूँ तो नॉन वॉलेंट्री एक्शन में हमारे नॉन वॉलेंट्री एक्शन का भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आगे चल कर ये जो है ट्रेजेडी की स्पीड को बढ़ा देता था ना। बहुत सारे आपको एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे 4 है हमारे पास। एक है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड, सुपर नेचुरल एलिमेंट, चांस और एक्सीडेंट, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। दीज ऑल आर नॉन वॉलेंट्री एक्शंस। ओके, सो आपको ऐसे याद करने में आसानी होगा। वॉलंटरी एक्शन में आपको हो जाएगा ट्रेजिक फ्लॉ, हमें या वो सब भी हो गया ना। और ये सब एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, चांस और एक्सीडेंट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ माइंड, ओके, इफ वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड, so in which suppose that let's take an example of Lear. Okay, so लियर का जो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड था वो ये था कि उसकी जो इंसैनिटी थी, वो जो उसका पागलपन था, रैश बिहेव था, वो उसका एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड ही था ना। तभी ना उसने जो है इतने बड़े अपने मतलब कि रेन को, साम्राज्य को जो है ओनली प्रेज सुनने के लिए ही डिवाइड कर दिया ना। तो रैश बिहेव ही तो था उसका। अगर हम मैकबेथ के सेंस में बात करें तो उसका जो क्या था, हेलुसिनेशन था। दिस इज द हेलुसिनेशन इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ मैकबेथ। एंड द हेलुसिनेशन सीन वाज एयर ड्रॉन डैगर। सबको पता है एयर, आप लोग को पता होना चाहिए एयर ड्रॉन ड्रैगर ना। उसको लगा कि हाँ जो ड्रैगर है वो अपने आप हवे में उड़ रहा है। ये सीन जो होता है, दिस इज द हॉल्यूसिनेशन। एंड द अदर इन मैकबेथ वी हैव द अदर एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड वाज सोमनैम्बुलिज्म ना। सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी किसको थी, लेडी मैकबेथ को। सोमनैम्बुलिज्म थी ना वो, नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। और सोमनैम्बुलिज्म एंड द सीन ऑफ स्लीप वॉकिंग सीन, स्लीप वॉकिंग सीन इसी से रिलेटेड है। दिस इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड, स्लीप वॉकिंग सीन। पूछता है स्लीप वॉकिंग सीन किस में है, तो ये लेडी मैकबेथ के द्वारा है, मैकबेथ प्ले में। ओके, तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड। और यही जो था हीरो हीरोइन का जो है ट्रेजिडी, ग्लूम ऑफ ट्रेजिडीज को कहते हैं। ठीक है, the second one is we have the second one, and second one is supernatural elements. Okay, supernatural elements. Okay, in the supernatural elements uh, Shakespeare introduced supernatural agents, and these supernatural agents were witches, ghost. In witches you find in मैकबेथ, घोस्ट, हेमलेट। ठीक, चुड़ैल जो विचेस थी, 3 विचेस मीट इन हीथ इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सो मैकबेथ को प्ले की शुरुआत में ही विचेस का सामना होता है, जो उसके माइंड को जो है डाइवर्ट करते हैं और धीरे धीरे एक ट्रेजिडी का रूप ले लेता है। ठीक है, एंड देयर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन बीचेस एंड
एक प्रोटैगनिस्ट। ओके, ऐसा कहते हैं ना, सुपर नेचुरल एजेंट्स जो हैं प्ले देयर ओन पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ द हीरो। ओके, द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स गिव अ confirmation and so inner movements and outer movements of hero's mind. Okay, if we talk about the bitches in Macbeth and the ghost in Hamlet, they mold the character. They mold the character of the hero to some extent and prepare hero or him for his tragedy. So these bitches and ghost the leading the path for tragedy. ओके, उन्हें क्लोजेट रिलेशनशिप है इनका, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे उनका जो है प्रोटैगनिस्ट से और यू कैन से हीरो से जो है एक क्लोजेट रिलेशनशिप होता था, जो जो उनको ट्रेजेडी तक ले जाने में हेल्प करता था। तो दिस इज द अनदर फैक्टर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एंड द थर्ड वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चांस और एक्सीडेंट। सो चांस और एक्सीडेंट, सो चांस और एक्सीडेंट में अगर मैं आपको देखो सिंपल सा एक रोमियो एंड जूलियट के एग्जांपल ले लेते हैं। चांस, अगर सपोज दैट दिस इज द चांस एंड जस्ट एन एक्सीडेंट, अगर रोमियो जो है अगर फायर का मैसेज पाया था तो कहानी कहीं और जाती, लेकिन रोमियो ने जो फायर का मैसेज पाया नहीं, उस जो पॉइजन था जो उसने जो है जूलियट को दिया था, और जूलियट समय पे जगी नहीं। अगर जूलियट समय पर जग गई होती या सो के उठ गई होती तो जो कहानी जो है उसकी ट्रेजेडी कुछ और होती, लेकिन नहीं, रोमियो नेवर गॉट द फायर्स मैसेज अबाउट द पॉइजन एंड जूलियट डिड नॉट अवेक फ्रॉम हर लॉन्ग स्लीप ए मिनट सूनर। एंड फर्दर इट वॉज अ फर्दर एन एक्सीडेंट दैट एडगर अराइव्ड। किंग लियर में देख लीजिए आप, किंग लियर में एडगर जो है बहुत लेट पहुंचता है, और जब तक वो पहुंचता है तब तक किंग डंकन और कॉर्डेलिया हैज बीन डाइड, किल्ड बाय ओके। सो कॉर्डेलिया की लाइफ को बचा सकता था अगर एडगर समय पहुंचता, लेकिन नहीं, दिस इज एन एक्सीडेंट। ओके, एंड द थर्ड एग्जांपल वी हैव अ थर्ड एग्जांपल ऑफ अथेलो। अथेलो का जो हैंडकरचीफ सीन है, एक हैंडकरचीफ सीन, जिसने हैंडकरचीफ सीन भी एक एक्सीडेंट ही था। मान लो एक्सीडेंट, उसका हैंकी जो है गिर गया था, तो जानबूझकर तो उसने जो एमिलिया थी, एमिलिया यागो की वाइफ जो एमिलिया थी, उसने जो है उसको किसको पास कर दिया, यागो को। एंड रिजल्ट आप सामने था कि ट्रेजेडी जो है यहीं से इसका शुरू हो गया। तो ट्रेजेडी में चांस और एक्सीडेंट का भी अहम रोल है। जैसे अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड का है, सुपर नेचुरल एलिमेंट का, वैसे भी चांस और एक्सीडेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। और अगर देखो अब आपके पास हैमलेट भी है, ठीक, अगर हैमलेट की हम बात करें तो हैमलेट में जो है जब विथ लेटर हैमलेट जो है इंग्लैंड भेजा जाता है डंकन क्लॉडियस के द्वारा, तो इट वाज एन एक्सीडेंट ना, इट वाज एन एक्सीडेंट जन पायरेट शिप अटैक्ड हैमलेट शिप, pirate ships attacked on Hamlet ship, so that the prince was back in Denmark and killed the Claudius. So ये सारी चीज़ें, चांस और एक्सीडेंट इज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। ओके, द फोर्थ वन इज लेट्स वी डिस्कस फोर्थ वन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल में आप देखिए तो कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल जो है ये टू फॉर्म्स में होता है। एक होता है इनवर्ड एंड
आउटवर्ड और इनर एंड आउटर दोनों, इनर आउटर। तो जैसे शेक्सपियर के कुछ प्ले हैं जिसमें जो है जो कॉन्फ्लिक्ट था और जो स्ट्रगल था, वो जो था उसमें जो है केवल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल था। जैसे आप रोमियो और जूलियट ले लीजिए, रोमियो और जूलियट, ठीक, इसमें जो है केवल एक्सटर्नल था, फैमिली मैटर था। रिचार्ड सेकंड को ले लीजिए, रिचार्ड सेकंड भी एक प्ले है, बहुत ही बेहतर प्ले है, ठीक, शेक्सपियर का। तो रोमियो एंड जूलियट में आप देख सकते हैं कि जो है जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था वो जो था तो फैमिली के बीच में था। और वहीं दूसरी तरफ अगर रिचार्ड सेकंड के प्ले को देखा जाए तो वो भी जो है एक्सटर्नल ही था, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल था, जिसमें एक तरफ जो है रिचार्ड सेकंड अकेले थे और दूसरी तरफ जो बॉलिंग ब्रोक थे ना, इनका जो रिचार्ड सेकंड में जो इनका था, एक तरफ ये अकेले थे और दूसरी तरफ बॉलिंग ब्रोक और उसके मेंबर थे ना, बॉलिंग ब्रोक और उसकी पार्टी थी ना। तो और लेकिन ये तो मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल दो होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल, और एक्सटर्नल बोथ होता है। सो रोमियो एंड जूलियट जो था वो केवल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल था। लेकिन हमारे अदर जो ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर है, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, तो ये ट्रेजेडीज जो थी वो दोनों थी, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो स्ट्रगल था वो इनर और एक्सटर्नल दोनों था, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ओके, 22-23 मिनट्स बीत गए इसमें जो है ट्रेजेडी में, इसको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को जस्टिफाई करते करते। पता नहीं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर सोच रहा हूँ मैं शेक्सपियरियन कॉमेडी के ऊपर बनाओ क्या। मेरा तो ये विचार है, आप लोगों का क्या विचार है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, किस में मैं आपको किस राइटर पे, किस उस पर जो है आपको शेक्सपियर की कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछनी है, किस पर वीडियो बनाया जाए, देखते हैं। ओके, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।